Hello, beautiful children. Welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I am Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, I am here back with another NCERT line by line session. Yeah. And today we are going to do the very first chapter of our syllabus, which is Living World. चाहे आप 2022 के बच्चे हो, एस्पिरेंट हो, और यू आर इन 2023 या 2023 बैच में हो, या फिर आप 2024 बैच में हो, दिस चैप्टर अप्लाइज टू एवरीबडीज प्रिपरेशन. यस, एवरी चैप्टर ऑफ बायोलॉजी आउट ऑफ 38 चैप्टर्स, किसी चैप्टर की वेटेज कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि every chapter counts. Every chapter which is clear and yields a correct question on the exam day brings us closer to our dream rank and very high NEET score. Keeping that in mind, I have started these sessions, line by line NCERT. We all know NCERT is a super important book and the gateway to clearing this exam. बट क्योंकि इतना सारा स्टडी मटेरियल होता है, इतना वास्ट सिलेबस है 4 सब्जेक्ट्स का, तो एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है और समझनी है, वहां पर हम हमेशा मार खाते हैं. यस, सो टू मेक योर जर्नी इजी, टू हेल्प यू गाइस विद decoding NCERT, to understand what NCERT is actually trying to say in every concept, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आना है. I am doing these sessions every Saturday 7 p.m. But the beauty of this series or this session is that all your comments are welcome. You want any particular topic or chapter to be done which you can't understand from NCERT, I will bring that chapter in the class. So I will look at all the comments. जिस भी चैप्टर और टॉपिक को आप किसी चैप्टर, अब देखो चैप्टर तो बहुत बड़ा है ना, कई चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं. इकोसिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है, या मैं बात करूं प्लांट किंगडम इतना बड़ा चैप्टर है. भाई कोई उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मैम ब्रायोफाइट्स समझ में नहीं आता, मैम ब्रायोफाइट्स आता, जिम्नोस्पर्म्स नहीं आता, मैम ये डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, हाँ मैम ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ना सिर्फ रूट प्रेशर थ्योरी समझ में नहीं आती. सो यू आर मोर देन वेलकम टू यूटिलाइज द कमेंट सेक्शन and ask your doubts and give me those topics which are a common problem for most of you. Yes? Now, bringing you the very first chapter today. Before that, like I always say, if you want to really ace your NEET preparation, whichever your aspirant you are of, please download the Akash Baiju's app. Explore the app free of cost for 14 days. You can book a free demo trial class, you can book counseling sessions, you can access the video libraries, you can access the question library which has all the important questions, skull crushers and previous year questions of your entire syllabus. Now people, if you love this session, if you love to be a part of Akash Baiju's NEET, you absolutely find your preparation happening seamlessly, effortlessly with the teachers of Akash Baiju's NEET. Like the session, share the session and subscribe to the channel. So let's begin. Let's open our beautiful book. I would recommend कि ये जो sessions मैं लूँगी NCERT line by line, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई PDF ना हो. चाहे मेरे सामने तो स्क्रीन पर है एनसीईआरटी, लेकिन आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उसमें आप पॉइंट्स लिखते रहें जैसे जैसे मैं लिखती हूँ. तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में है ना, अब पूरा चैप्टर ना करके उतना वक्त ना जाया करते हुए, आई हैव पिक्ड अप कैटेगोरिकली द टॉपिक ऑफ टेक्सोनॉमी. तो इस चैप्टर में ना 3 पार्ट्स हैं. भाई पहले तो इंट्रोडक्शन है
कि what exactly is living, है ना, what are the features of a living organism, how is it different from the non-living world. उसके बाद आता है the skill of taxonomy, the tool of taxonomy which helps us to study this huge biodiversity on this planet, इतने सारे organisms. और तीसरा आता है the various taxonomical aids which helps us to preserve the biodiversity, preserve the specimens in order to study them, है ना. तो taxonomical hierarchy से start करते हैं. पहला क्वेश्चन जो इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट इज I'm going to be marking the questions. हम हर एक पैराग्राफ में जिसमें से प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस आए हैं वो निकालते जाएंगे. आई एम गोइंग टू हाईलाइट देम. यू कैन हाईलाइट विद मी. बेटर इज यू राइट विद मी. सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी? We know that taxonomy आप लोग पढ़ चुके हो. It is the study of classification. It is the science of classification. Not study, but the science of classification. है ना? Very important. What are the steps? First of all, you should be able to characterize the organism. कि इसके ये characteristics हैं. है ना? कि अगर ये bird है तो इसके ये wings हैं, इसकी ये beak है. या अगर ये flower है तो I know the different characters of the different organisms. With this characterization, I am able to identify the organism. कि ये insect है, bird है, plant है. And then once you've identified, you're able to classify. You classify the organism into different groups. है ना? And then while you classify the organism, you're able to give a particular universally accepted name. Excuse me. वो जो रूल है नोमेनक्लेचर का, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है बाय कैरोलस लीनियस. या so these are the steps to or the processes involved in the taxonomy. अब दूसरा important question, question number 2. This is actually not enough. What more do we require? We require to establish the phylogeny or the evolutionary relationships of organisms. बोले तो the organism in question जो मेरे सामने है, जो भी पौधा है, इंसेक्ट है, एनिमल है, वो आया कहाँ से? जरूरी नहीं है कि उसका जो एंसेस्टर है, सारे एंसेस्टर आज प्लैनेट पर है. Many of the ancestors are extinct. Yeah? But forming that path, forming that tree, which helps me to study the evolution of organisms, is also added to taxonomy. And that branch is called as systematics. Previous year question. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from systema, which simply means systematic arrangement of organisms. और लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरे जो बुक लिखी थी, उन्होंने इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की है. राइट? Is it clear? Systematic takes into account evolutionary relationships. This is a direct question. अब ये क्लासिफिकेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप भी जानते हैं. क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो एक ही ऑर्गेनिज्म को अच्छे से जानने के लिए हमें उसको कैटेगरीज में प्लेस करना पड़ता है. ये कैटेगरीज हैं क्या? तो एक्सप्लोर करते हैं. Taxonomic categories. Now, classification is not a single-step process, but involves a hierarchy. Hierarchy मतलब एक particular sequence follow की जाती है ना? It involves a hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Bhai, since the category is a part of the overall arrangement, it is called the टेक्सॉन और दी टेक्सोनमिक कैटेगरी. इसको टेक्सॉन, हर एक कैटेगरी को आप टेक्सॉन भी बोल सकते हो. और वो पूरी की पूरी सीक्वेंस को
आप बोलोगे टेक्सोनोमिक हायरार्की. Each category referred to as a unit of classification represents a rank and is called as taxon. Previous year question बता दिया, 3 क्वेश्चन निकाल दिए. भाई मैं ये क्लासेस इसलिए कर रही हूँ, नंबर 1 कि आप एनसीईआरटी खोलकर गुम या लॉस्ट फील ना करो. बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि मैम हर तरफ दुनिया यही बोल रही है एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगी, टॉपर्स भी यही बोल रहे हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन ये बुक पढ़नी कैसे है हमें समझ में नहीं आती है. और फिर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन एमसीक्यू नहीं सॉल्व होते. ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एनसीईआरटी पढ़कर एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते इसलिए हमें कोई और बुक पढ़नी पड़ेगी. ऐसा बिल्कुल गलत है. तो ये जो सीरीज है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एनसीईआरटी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी. आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो दिस इज डन. उसके बाद टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. भाई हमें एग्जाम्पल्स बहुत पसंद है. अब ये समझ रहे हैं हम कॉन्सेप्ट्स. इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर मैं बोलूं सारे कीड़े, हाँ मैंने सिर्फ बोला इंसेक्ट, जेनेरिकली मैंने बोला इंसेक्ट, ये वो ग्रुप है उन सारे ऑर्गेनिजम्स का जिनमें भाई कॉमन कैरेक्टर है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. आर्थ्रोपोडा. हम अग्री करते हैं, इतनी समझ हम में है. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. इस कॉमन समझने की कोशिश करो. मैंने कॉमन फीचर्स को आइडेंटिफाई किया और उन सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंस भी है वो मना ही नहीं है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को मैंने एक रैंक दे दी बेस्ड ऑन वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टर्स. जो सबसे रिकॉग्नाइजेबल फैक्टर ये है 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. सही बात है. रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. इंसेक्ट इज अ ग्रुप, 1 कैटेगरी. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. ईच रैंक और टैक्सॉन, रैंक एंड टैक्सॉन आर सिनोनिमस टर्म्स, कंफ्यूज नहीं होने का. एवरी टैक्सॉन बच्चों represents the unit of classification. Okay, these groups are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Is it clear? तो हर एक कैटेगरी, हर एक टैक्सॉन, मैंने बोला स्पीशीज, मैंने बोला क्लास, मैंने बोला फैमिली, इट इज अ डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटाइटी. ऐसा नहीं है कि कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके मैंने एक कैटेगरी बना दी है. इज इट क्लियर? अब टेक्सोनोमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द, अभी तक जब हमने टेक्सोनोमिकल स्टडीज करी तो जो बेसिक, देखो अभी भी कैटेगरीज, सब फाइलम, सब किंगडम, सुपर वेराइटीज, सब वेराइटीज, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बट वी विल स्टिक टू द बेसिक कैटेगरीज. जो बेसिक कैटेगरीज हैं वो है, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द हाइएस्ट वन इन द हायरार्की, दैट इज किंगडम. देन कम्स फाइलम और डिविजन, क्योंकि फाइलम हम एनिमल किंगडम के लिए यूज करते हैं और डिविजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. आई बात समझ में सबको? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? बट आई कीप हाईलाइटिंग एंड यू कैन गो विद मी. उसके बाद डिवीजन और फाइलम के बाद क्या आता है भाई? ये ऑर्डर पता होना बहुत जरूरी है. सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन यही है. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. आई चेंज द हाइलाइटर, डोंट वरी. ठीक है. सो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, यानी कि ये सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई. All organisms, including those in plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. भाई मैंने किंगडम में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हमें मालूम है ना? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 कुछ लोग अभी पढ़ भी रहे हैं मेरे साथ. R.H. विटेकर ने बोला कि दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड करो. भाई हर एक ऑर्गेनिज्म जो जिस भी किंगडम को बिलोंग करता है, हमने ब्रॉडली जो बड़ी किंगडम्स हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम्स हैं, उनको लिया है. उस हर ऑर्गेनिज्म की एक रैंक स्पीशीज भी होगी. ओके.
नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. मैं किस बेसिस पे रैंकिंग करूं? जायज सवाल है. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स. भाई फर्स्ट स्टेप ऑर्डर या जो गेम के रूल्स है ना वो फॉलो करने बहुत जरूरी हैं. तो पहला कैरेक्टराइजेशन तो बनता है. अगर मैं कैरेक्टर्स ही नहीं नोट कर पा रही हूं तो आई कैन नॉट क्लासिफाई इनटू रैंक्स. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग. क्यों करते हैं कैरेक्टराइजेशन? आपके पास 2 ऑर्गेनिजम्स हैं या मान लीजिए आपने एक कोई नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया, आपको मिला वो. अगर आप उसके कैरेक्टर्स नोट डाउन करोगे, कैरेक्टराइजेशन करोगे, तो आप उसकी सिमिलैरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करोगे, है ना? तो फर्क और सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज को फिल्टर आउट करने के लिए कैरेक्टराइजेशन has to be the very first and important step. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of the other kinds. तो अब हम रैंक बाय रैंक जाएंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे. भाई पहली बेसिक रैंक क्या है? स्पीशीज है. सबको पता है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ, सबसे पहले जान लें कि स्पीशीज क्या होती है. दोज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. कहने का मतलब ये है कि स्पीशीज लेवल पे ना सिमिलैरिटीज बहुत होती हैं, अधिकतर होती हैं. भाई आप एग्जाम्पल खुद ही देख लीजिए, होमोसेपियंस है ना, जितने भी सेम स्पीशीज के हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, मॉडर्न मैन है, उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी. भाई मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है, ये सब कंसिडर किया जाता है ना? तो वो सब ह्यूमन बींग्स में सेम रहता है. द बेसिक जेनेटिक लेवल पे जो सिमिलैरिटीज होती हैं. सो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस. लेकिन भाई जो जीनस है, अगर होमोजीनस है, जो मॉडर्न मैन है, वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश मॉडर्न मैन फ्रॉम द केव मैन जो प्रिमिटिव मैन था, हाँ, और फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स जो एप्स थे, है ना? सो वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन सम डिसिमिलैरिटीज. देखो क्लासिफिकेशन इज नेवर अबाउट ओनली सिमिलैरिटीज. It will always take into account dissimilarities. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका. आम इज मैंगीफेरा इंडिका. सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो. पैंथेरा लियो लायन. क्लियर है? हमने क्या लिया? एक पौधा ले लिया, 2 पौधे ले लिए डिफरेंट, और एक हमने लायन ले लिया. ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा लिखती है एनसीईआरटी, बस पढ़ना आना चाहिए, वही सिखाने के लिए मैं आपके साथ हूं. ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो. ध्यान से देखिए, जो सेकंड नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो आप जानते ही हैं. तो इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो represent these specific epithets, यानी कि स्पीशीज का नाम है ना. while the first words are the genus. Cool? They represent another higher level. Very important. Very very important. भाई सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो है, लेकिन सोलानम जीनस में पोटैटो से अलग वाले प्लांट्स भी होंगे. बैंगन भी सोलानम जीनस का है. अब बैंगन और पोटैटो तो दिखने में डिफरेंस है. तो सोलानम इज द नेक्स्ट कैटेगरी. कहने का मतलब है कि एज यू गो अप द कैटेगरी, द नेक्स्ट रैंक, द हायर रैंक, dissimilarities creep in, similarities reduce, dissimilarities become equally visible. जैसे कि मॉडर्न मैन और एप मैन, प्रिमिटिव मैन, सिमिलैरिटीज है लेकिन डिसिमिलैरिटीज भी काफी अच्छे से विजिबल है. ठीक है,
तो with the help of examples we'll keep understanding. If you're loving this session, like the session, आप हमेशा ऐसा करते हो, you always enjoy classes with Akash Baiju's NEET channel, and I know you people love us, support us immensely. Share this session, like the session, share with everybody. This session is not exclusive for any particular year of aspirant, like I said earlier. भाई सिलेबस तो सेम है जब भी नीट में बैठना है, और उससे भी ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं नॉलेज और साइंस, जो सिर्फ फायदा ही कर सकती है. नॉलेज ऑलवेज इज अ वेल्थ. तो शेयर करें एंड स्प्रेड दिस. important, very very important is how to approach NCERT. if that is sorted ना बच्चों, तो लाइफ काफी इजी हो जाती है इन दिस जर्नी ऑफ नीट प्रिपरेशन. चलिए आगे चलते हैं. देखिए जो मैंने अभी बोला कि आप नेक्स्ट रैंक में गए, हायर रैंक में गए, each genus may have one or more than one species. Specific epithet binomial nomenclature means species. बोला ना मैंने आलू और बैंगन. ओके अब इसको भी एक्सप्लेन करेगा. NCERT is very helpful if you read it nicely. देखो फॉर एग्जाम्पल पैंथरा, यहाँ पे आइए. पैंथरा क्या है बच्चों? जीनस है. इट हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, यानी कि टाइगर. तो आप कहोगे भाई लायन और टाइगर में अच्छी खासी डिफरेंसेस दिखते हैं, बट दे ओइंग टू दिस सिमिलैरिटीज दे बिलोंग टू द सेम जीनस. यही एग्जांपल मैंने दिया. सोलानम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलिंजिना. बताया मैंने बैंगन होगा. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो. द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग बिकम्स होमो सेपियंस. Now let's talk about genus, the next category. We have started from the most basic and will travel till the highest category, which is kingdom. Genus is group of related species. जहाँ पर characters, more characters are in common, which has more characters in common in comparison to species of other genera. Cool? तो अगर आप एक पर्टिकुलर जीनस ले रहे हो, होमो सपोज आपने जीनस ले लिया, तो इसके सारे मेंबर्स के कैरेक्टर्स दूसरे जीनस से ज्यादा मिलते होंगे. इतनी सी बात है. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, example is important. ध्यान से देखिएगा. Potato and brinjal are two different species, but both belong to the genus Solanum. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. Lion and leopard and tiger, ये तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं तो डिफरेंट. क्योंकि डिफरेंट है उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको डिफरेंट स्पीशीज में डाला है, बट उनकी सिमिलैरिटीज को भी तो ध्यान रखना है ना. उन सिमिलैरिटीज के चलते हुए हमने उनको एक जीनस में डाल दिया, लेकिन इनके बीच में सिमिलैरिटी बिल्ली के जीनस से ज्यादा है. ओके तो इसलिए कैट का जीनस अलग है, बट इन तीनों का सेम है. आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथरा. एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग एंड टॉकिंग NCERT लाइक आई ऑलवेज से, है ना. मैं कुछ नहीं, बस एक वॉकिंग एंड वही एग्जाम्पल है. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स द कैट्स. अब बच्चों यू हैव ऑल द हेल्प फ्रॉम मी. You have all the help from me. The series NCERT line by line has been launched by me only to hold your hand for anything. मैं क्लासेस में रेगुलरली आती हूँ, पूरा हफ्ता आती हूँ आपको सिलेबस वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने के लिए. वो क्लासेस भी हैं. आपको NCERT में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आई हैव ब्रॉट दिस सीरीज. आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, उसकी अलग सीरीज है. राइट? सो एवरीथिंग यू नीड इज राइट देयर. अगर आपको तब भी प्रॉब्लम होती है, लाइक आई सेड, द कॉमन सेक्शन, दिस इज योर क्लासरूम, इट इज योर कॉमन सेक्शन. बोलो मुझे कि मैम ये टॉपिक अब लिविंग वर्ल्ड के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है. नहीं मैम, आप पहले ना ये वाला टॉपिक उठा लीजिए, हमें फोटोसिंथेसिस में नहीं समझ में आ रहा है लाइट रिएक्शन. ओके लेकिन मैं थोड़ा देखूंगी कि कौन सा टॉपिक है जो मेजॉरिटी को समझ में नहीं आ रहा है. ओके सो यू हैव मी फॉर ऑल द हेल्प यू नीड. ऑल आई नीड इज, व्हाट डू आई नीड?
that you connect with us. Stay connected and be very very regular to the classes. कुछ भी हो जाए क्लास जरूर अटेंड करनी है, because it's going to be a super fruitful and yielding class. It is for you, only for you. चलो, आई बात समझ में. नेक्स्ट हम फैमिली की तरफ जाते हैं. चलें फैमिली की तरफ. चलो भाई, अब ये है उससे भी ज्यादा बड़ी, जीनस के भी ऊपर आ गई. तो भाई मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि जब मैंने रैंक फैमिली देखी तो यहां पर सिमिलैरिटीज और कम होने वाली हैं और डिससिमिलैरिटीज दिखने वाली हैं. फैमिली अगर डिफाइन करना हो, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. Similarities will decrease as you go above the ranking, as you go up in the hierarchy, as compared to genus and species. Very important, one of my favorite lines. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. कहने का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है बात, उसमें यही है कि जब आप फैमिलीज में डालते हो, आप में से कुछ लोग हैं जो प्लांट की फैमिलीज भी पढ़ चुके हैं. सोलनेसी हो गई, फेबेसी हो गई, लिलिएसी हो गई. भाई ये कैटेगराइजेशन, ये फैमिलीज की ना ही सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे होती है, बट हम उनकी रिप्रोडक्शन को भी ध्यान रखते हैं. अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, देखो इस टॉपिक में ना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे एग्जाम्पल ही पूछ सकता है. अमंग प्लांट्स, भाई हमने 3 डिफरेंट जेनरा लिए. अभी तक हम सोलानम की बात कर रहे थे. अब वो बोल रहे हैं चलो 3 जेनरा लेते हैं, सोलानम, पेट्यूनिया एंड दतूरा. इन तीनों प्लांट्स को, इन तीनों जीनस को, भाई सोचो अगर सोलानम जीनस है तो उसके अंडर कुछ स्पीशीज आएंगी. भाई अगर पेट्यूनिया जीनस है उसके अंडर कुछ आएगी, दतूरा है उसके अंडर ढेर सारे प्लांट्स आएंगे. उन सब को हमने एक फैमिली में डाला, सोलनेसी. देखो सोलनेसी में टबेको भी आता है, सोलनेसी में मिर्ची भी आती है, सोलनेसी में आलू भी आता है, सोलनेसी में टमाटर भी आता है. आई बात समझ? ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज हो रहा है, जाहिर सी बात है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अमंग एनिमल्स, उसने बोला चलो एनिमल्स का एग्जाम्पल भी ले लो. उसने बोला भाई पैंथेरा जीनस तो तुम्हें पता है, अभी अभी हमने फेलिस की बात करी थी. अब पता क्या होगा, अब मैंने बिल्ली को, शेर को, टाइगर को, लेपर्ड को एक फैमिली में डाल दिया, owing to their similarities, which will be of course less. So genus Panthera comprises of lion, tiger, leopard with the genus Felis in the family Felidae. We good? Similarly, if you observe the features of a cat and dog, Canidae, तो you will find some similarities and some differences. उनको हमें different families में डालना पड़ा, Canidae and Felidae. Important. फिर नहीं ये होना चाहिए कि मैम ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया. मेहनत कम होती है, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, मान के चलिएगा. आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए भाई. उसके बाद आया ऑर्डर. यू हैव सीन, अब तक तुम्हें यू कंफर्टेबल विद द फ्लो ऑफ इट, है ना. अब ऑर्डर में सिमिलैरिटीज और कम हो जाएंगी. Generally, order in other higher categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the assemblage of families, which exhibit a few similar characters. Example में मुझे interest है, यहाँ पे आते हैं. देखो, plant families like Solanaceae are included in the order Polymoniales. Even Convolvulaceae family, it is hard to pronounce, and Solanaceae को हमने पॉलिनोमियल्स ऑर्डर में डाला है, ओनली बेस्ड ऑन चीफ कैरेक्टराइजेशन बीइंग द फ्लोरल कैरेक्टर्स. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फेलिडी एंड कैनिडी. या तो अभी तक हम कैट्स और डॉग्स को सेम फैमिली में नहीं डाल सकते थे ओइंग टू द डिसिमिलैरिटी, बट जब हम ऑर्डर पर आए वी कुड फाइनली पुट देम इन द सेम ऑर्डर विच इज कार्निवोरा. या What is the class? Related orders. For example, ये आप एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से पढ़ते हो. Order Primata. Number of organisms are going to increase. Similarities are going to decrease.
रिपीट, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू इंक्रीज, सिमिलैरिटीज आर गोइंग टू डिक्रीज. हमने ऑर्डर प्राइमेटा में मंकी को भी डाल दिया, गोरिल्ला को भी डाल दिया, गिबन को भी डाल दिया, ऑल ऑफ क्लास मेमेलिया. हाँ, along with हमने ऑर्डर कार्निवोरा को भी ले लिया, जिसमें आपने अभी देखा टाइगर, कैट एंड डॉग था. ठीक है. सो what you're seeing is a aggregation, huge aggregation of different species, order, genus, class, families, order happening at the level of class. अब आते हैं phylum. So as we go up, इसका classic example again animal kingdom से आप ले सकते हैं. For example, classes which comprise fishes, amphibians, reptiles, birds, कितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं along with mammals. ये सब एक साथ आ गए in the higher category which is the phylum. और आप you will realize कि अब similarity of characters बहुत कम, बहुत ही धुंधली हो गई है. All these based on the common features. भाई common features, commonalities अब बहुत बहुत कम हो गई हैं as you go to phylum. ये सारे ऑर्गेनिज्म एक फाइलम कॉर्डेटा में इसलिए साथ में आए क्योंकि इनमें क्या कॉमन कैरेक्टर्स थे? जस्ट दैट देयर वाज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड द डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. या प्लांट्स की बात करूं तो क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू डिविजन. वो हम बात कर चुके हैं कि प्लांट किंगडम के केस में इंस्टेड ऑफ फाइलम वी यूज डिविजन्स. नेक्स्ट इज किंगडम, द हाईएस्ट वन. यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज हार्डली कुछ होगी, है ना. सो प्लांट किंगडम सच अ ब्रॉड एरिना, राइट. तो हर तरह के प्लांट्स, इतनी सारी वेरिड क्लासेस, फैमिलीज, ऑर्डर्स, फाइला. ऑल animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom. Animalia in the classification system of animals, kingdom Plantae for all the plants from various divisions. या सारी divisions को लेकर हमने plant kingdom में डाल दिया. Is it clear? The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. ये रहा आपका ascending order. या ascending बोले तो बढ़ते हुए order में. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को मार्क करो या असेंडिंग ऑर्डर में मार्क करो. सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. या तो ये जो टेबल दिया है इसमें बेटा मैन एंड हाउस फ्लाई ये पक्का करके जाना. ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. मैन एंड हाउस फ्लाई इज इंपॉर्टेंट. The classification of man and housefly, I would say do it for, because nothing can be missed in NCERT. Do the entire table. Then we come to the taxonomical aids. Taxonomical aids में आपका question जो आता है it is from modern taxonomical aids. Nevertheless, quickly you should know the difference between the डिफरेंट एड्स. देखो हर्बेरियम आज इतनी यूज नहीं होती है. इनफैक्ट बोटानिकल गार्डन्स में हर्बेरियम हो सकता है, लाइब्रेरीज में हर्बेरियम हो सकता है. हर्बेरियम इज ओनली फॉर ड्राइड डेड प्लांट्स विच आर पेस्टेड एंड प्रिजर्व्ड ऑन हर्बेरियम शीट्स, और उनको फिर हम अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम्स. हर स्पेसिमेन में डिस्क्रिप्शन होती है हर्बेरियम शीट में, विच बिकम्स अ रेपोजिटरी, विच बिकम्स अ स्टोर हाउस, की हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको कभी भी पढ़ पाए. जो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया है मैं वो आपको बता रही हूँ कि हर्बेरियम शीट में लेबल विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. इट विल प्रोवाइड द लोकल एंड द बोटानिकल नेम्स. इट विल प्रोवाइड द मे बी द फैमिली ऑफ the plant belongs to, collector's name. या लेकिन यहाँ पर हम प्लांट के फीचर्स को डिस्कस नहीं करते. ये बड़ा रीसेंट क्वेश्चन है कि क्या हाइट ऑफ प्लांट को डिस्कस करेंगे हर्बेरियम में? नहीं डिस्कस करेंगे. हाँ, वो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ सकता है. उसके बाद बोटानिकल गार्डन्स. भाई बोटानिकल गार्डन्स प्रेजर्वेशन का भी मेथड है, इकोलॉजी में आता है ना. इट इज अ मेथड ऑफ प्रेजर्वेशन एज वेल, जिसमें आप डिफरेंट एक पर्टिकुलर स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज को आप प्रिजर्व कर सकते हो. दे हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स. ये फायदा है बिकॉज यू कैन देन स्टडी द हैबिट्स ऑफ द प्लांट.
Plant species in these gardens are grown for identification purposes. और यहाँ पर you must have visited botanical gardens ना, बहुत हैं. Rose garden, tulip garden. तो उसमें आपको ना एक पर्टिकुलर स्पीशीज की, जैसे रोज की ही डिफरेंट आपको वेराइटीज दिखेंगी, राइट? एंड दे विल मेंशन द स्पीशीज देयर, दे विल गिव द साइंटिफिक नेम, द बोटानिकल नेम, द फैमिली. द फेमस बोटानिकल गार्डन, इन फैक्ट द ओल्डेस्ट, इज इन क्यू, इंग्लैंड. इंडियन, हमारे इंडिया में जो लार्जेस्ट है दैट इज इंडियन बोटानिकल गार्डन इन कोलकाता, हावड़ा इन इंडिया, वेस्ट बंगाल. एंड लखनऊ में नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. यस, इनके नाम आ सकते हैं. क्यों इंग्लैंड? इंडिया का पूछा है तो वेस्ट बंगाल एंड द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. उसके बाद म्यूजियम. म्यूजियम में फिर डेड स्पेसिमेंस होते हैं, ड्राई स्पेसिमेंस होते हैं, लेकिन इनकी रेंज बहुत ज़्यादा हो सकती है. इट कैन बी टिश्यूज, इट कैन बी बॉडी पार्ट्स, इट कैन बी एनीथिंग. कैन बी, ऐसे तो म्यूजियम में पेंटिंग्स भी होती हैं. इट कैन बी a book written by someone, anything. Yeah, जो specimens हैं, living specimens हैं, they are preserved in containers or jars in preservative solutions. Yeah, उसके बाद zoological parks में again a method of preservation as well. ये animals के लिए exclusively होगा. Okay, now people, key, the modern method. इसमें से सवाल आता है. Key is another taxonomical aid used for identification. It is an analytical aid. Analysis करते हैं इससे. Okay? यहाँ पर क्या होता है? The keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. ध्यान से सुनना. भाई, सपोज आपने कैरेक्टर चूज कर लिया कि मैं देख रहा हूं स्टेम हाइट. हर एक कैरेक्टर के लिए एक की है. या मैं देख रहा हूं लीफ शेप. तो इसके लिए जो की होगी उसमें स्टेटमेंट ए होगी और बी होगी. सो यू हैव अ कपलेट ऑफ स्टेटमेंट्स, पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग. शॉर्ट स्टेम हाइट, long stem height, broad leaf, narrow leaf. Just giving you an example. With me? So when you look at the organism, you do the characterization. है ना? Classification ऐसे ही करते हो. तो you will assign one statement called the lead. तो आपके पास already keys prepared है भाई. You use those keys. आपने की खोली है, स्टेम हाइट की ये की है, चलो एक लीड स्टेटमेंट दोनों में से चूज कर लेता हूं. यू असाइन दैट पर्टिकुलर की एंड इट विल ओपन द लॉक ऑफ क्लासिफिकेशन. इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू ऑपोजिट ऑप्शंस. क्लियर? दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन. चमकाना सबको. ओनली वन स्टेटमेंट एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर. तो आपको क्या हो रहा है? आपको क्या पता लग रहा है? यू विल बी एबल टू कैरेक्टराइज द ऑर्गेनिज्म कि हाँ, शॉर्ट स्टेम हाइट है, ब्रॉड लीफ है ना? ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड. आई जस्ट टोल्ड यू भाई, दिस इज lead 1, this is lead 2, this is lead 1, this is lead 2. You assign one of the leads and reject the other. Separate taxonomy keys are required for each category. Species, family. आपको अलग अलग keys चाहिए होंगी for identification purposes, and they are analytical in nature. So these the key is also important. Other modern methods जो आजकल use हो रहे हैं, flora is just the book. It's a book कि इस geographical area में ये plants grow करते हैं, ये geographical area है, ये climatic condition है, और यहाँ पर अधिकतर commonly इस तरह के plants grow करते हैं. Manual is again a list of all the organisms. भाई इस limited geographical area में, कंट्री के इस पार्ट में, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में मोस्टली ये ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. मोनोग्राफ क्या करेगा? एक पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज करेगा. मैं तो इस जीनस को स्टडी करूंगा, मैं तो इस फैमिली को स्टडी करूंगा. ओके. कैटलॉग इज अगेन, कैटलॉग इज सिंपली, कैटलॉग इज व्हाट? नॉर्मल लाइफ में द कैटलॉग ऑफ फर्नीचर, द कैटलॉग ऑफ क्लोथ. भाई जितनी भी आइटम्स हैं इस एरिया में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल
researchers, ecologists, yeah, so students of this science of systematics and classification. Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. Manuals are useful in providing information for names of species found in an area. Monographs contain one taxon. Very important. ये previous year question है भाई. आपको मैंने सारे questions यहीं पर करवा दिए. So this was about the important MCQs from the chapter of Living World. I'm going to do as many chapters as I can. Yeah. Again, if most of you would want a particular chapter to be done, I would like to take it up. Keep working hard, people. That is all that counts. But take care of your health and keep smiling. Put all your doubts in the comment section and I'll see you in the next class.